Good morning, student. All of you know we are facing a big problem. The virus is spreading very fastly in our country. So our schools are closed, but in this way we are losing our education. So I want to start a video program for developing the learning skill of childs, because after 6 months there are no any signs about to open the school from the government. So how we learn or educate our student in COVID-19 spreading period? I started a video to teach the lesson of our 12th class student. I think your subscriptions and likes tell me how I succeeded in my now. We are start with lesson 1 of class 12th MPBSE textbook, and just like we start anything, we start with pray. In this book we are also starting our lessons with a pray. The name of this prayer is Teach Me to Listen, Lord. It is in the form of a poem. So first I will detail you or explain you what is the meaning of this poem. Listen carefully. This is the poem about to listening. Now we start our poem. Lesson 1, Teach Me to Listen, Lord. In the bracket you are reading two questions, that what is more important, to speak effectively or to listen attentively. Just you think about it. You want to become a chatterbox? Are you want to become a chatterbox? No. All of you answered it, no sir. But everyone want to the good things or learn by the listening. So listening is important, then become a chatterbox. So I told you that listening attentively is an art. And whom should we listen to? And how? This is an important question which will we find the answer in this lesson. Now let's start the reading of this lesson with explanation. Teach me to listen, Lord, to those nearest me. हे भगवान, आप हमें सुनना सिखाइए. Whom to be listen? किसको सुनना सिखाइए?
जो मेरे नज़दीक हैं, जो मेरे करीबी हैं। माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई कोवर्कर्स, मेरे परिवार वाले, मेरे मित्र, मेरे साथी कार्यकर्ता, इन सभी लोगों को हेल्प मी टू अवेयर दैट, इन्हें जागरूक करने में आप मेरी मदद कीजिए। नो मैटर वॉट वर्ड आई हियर, जो कुछ भी मैं सुनूं उससे मुझे संदेश मिलना चाहिए कि जैसा भी मैं हूं, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, मैं जैसा भी हूं मुझे स्वीकार करो और मुझे सुनने की क्षमता दीजिए, मुझे सुनना सिखाइए। I think the paragraph you have read, here you find some hard words, and I want these words you have to write in your notebook and find its meaning through your dictionary. So you also understand it as a homework to find the meaning of these words, just like teach, listen, nearest, family, friends, co-workers, help, aware, matter, words, message, accept, person, listen. Now let's go to the next para, that is, teach me to listen Lord to those far from me. ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए जो मुझसे बहुत दूर हैं उनको भी। द विस्पर ऑफ द होपलेस, निराश लोगों की दबी हुई छोटी सी फुसफुसाहट की आवाज़ को भी आप मुझे सुनना सिखाइए। द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, भूले बिसरे लोगों की दलीलों को भी मुझे सुनना सिखाइए। द क्राई ऑफ द एंग्विज्ड, व्यथित लोगों के दर्द भरी चीत्कार को भी मुझे सुनने की क्षमता दीजिए, मैं उन्हें समझ सकूं और सुन सकूं। इन दिस पैरा वी आल्सो फाउंड सम हार्ड वर्ड्स लाइक दोज, फ्रॉम, विस्पर, होपलेस, प्ली, फॉरगॉटन, क्राई, एंग्विज्ड. These are the words. You have to find these meanings of the you have to find out the words and its meaning through your dictionary and note down it in your fair notebook. Now turn the page and come into the next para, that is, teach me to listen Lord to myself. Help me to be less afraid to trust the voice inside in the deepest part of me. हे भगवान, आप मुझे सुनना सिखाइए मेरे स्वयं की आवाज़ को। हे भगवान, आप मुझे सुनना सिखाइए मेरे स्वयं के अंतरात्मा की आवाज़ को। हेल्प मी टू बी लेस एफ्रेड, हे भगवान आप मेरी सहायता कीजिए ताकि मेरे मन में ज़्यादा डर उत्पन्न ना हो। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, अंदर से आने वाली आवाज़ जो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द, उस पर मुझे भरोसा करना आप सिखाइए जो कि बहुत मेरे अंतरात्मा से निकल रही है या कह रही है मेरे अंदर से, उस आवाज़ को आप मुझे सुनना या सुनने की क्षमता प्रदान कीजिए। Here we also find some hard word like myself, afraid, trust, voice, inside, deepest, part. These words I have given you for the homework. You have to find the meanings of these words from your dictionary. Teach me to listen Lord, in the next para. Teach me to listen Lord for your voice. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए आपकी आवाज़ को। इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, जब मैं बहुत व्यस्त हूँ या जब मैं बिल्कुल आराम में हूँ, उबासी की स्थिति में हूँ,
उस समय भी मुझे आपकी आवाज़ को सुनने की क्षमता या सीखने की क्षमता आनी चाहिए या सुनने की क्षमता मिलनी चाहिए। इनसर्टेनिटी इन डाउट, जब मैं बहुत निश्चिंत हूँ या जब मैं संदेह की स्थिति में हूँ। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, चाहे कितना भी शोर हो और चाहे कितनी भी शांति हो। हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए ताकि मैं सभी को सुन सकूं। I think lesson have been complete. Now we are coming in about the poem. We know the difference between hearing and listening. हम सुनाई देने और ध्यानपूर्वक सुनने में जो अंतर है उसे जानते हैं। It is widely accepted that listening is a skill that is acquired through dedication and practice. और ऐसा कहा जाता है कि अच्छा इंसान निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति होता है और ध्यानपूर्वक सुनने की जो कला है वह लगन और अभ्यास के द्वारा अर्जित की जा सकती है। It is said that a good person is invariably a good listener. यह माना जाता है कि एक अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा सुनने वाला होता है। The poem in the form of prayer tell us to be good listener. और इस कविता के माध्यम से एक अच्छा सुनने वाला कैसे बना जा सकता है उस बारे में यह पूरी कविता आपने सुनी है या उसके विषय में मैंने वर्णित किया है। We should begin by listening to those who are the nearest. हमें जो हमारे सबसे करीबी व्यक्ति हैं उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना शुरू करना चाहिए। We may find out that although they do not speak it aloud, yet they all want our attention and recognition. हमें ज्ञात होगा कि जो भी हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं या जो हमसे कुछ बोलना चाहते हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुने, सावधानी पूर्वक सुने, उनकी बताई हुई बात को हम मान्यता प्रदान करें। द पोएम टेल्स अस टू हीड द वॉइस, हमें उस आवाज के प्रति सम्मान देने की आवश्यकता है। विच मे नॉट बी विद इन आवर ईयर शॉट, दे आर द वॉइस ऑफ द पीपल हु आर ऑप्रेस्ड, हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल अस देयर वोज। और इस तरह से जो लोग प्रताड़ित हैं या किसी परेशानी में हैं उनके द्वारा की हुई आवाज़ या प्रार्थना को भी सुनने की क्षमता हम में होनी चाहिए। और वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली, और हम उनकी बातों को समझते हुए उस प्रार्थना तक पहुंच सकें, उनकी प्रार्थना को समझ सकें और उनके लिए जो कुछ हमसे बन सकता है वह हमें करना चाहिए। कॉन्शियंस इज द इनर वॉइस दैट वार्म्स अस अगेंस्ट द सिंफुल डीड, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको बुरे कर्म करने से रोकती है। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हेन वी डू रॉन्ग वी सप्रेस दिस वॉइस। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो वो बताती है कि ये सही है या गलत है। व्हेन वी डू रॉन्ग, हम गलत जब करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाते हैं। वी शुड इंस्टेड ट्रस्ट इट एंड लिसन टू इट, परंतु उस समय हमें उसको सुनना चाहिए और उसकी बात को मानना चाहिए। फाइनली द पोएट वांट अस टू लिसन टू गॉड वॉइस, और अंत में भगवान चाहता है कि हम अंत में कभी चाहता है कि वह भगवान की आवाज को भी सुनने की शक्ति प्राप्त करे। विच गाइड अस एवरीवेयर एंड ऑल टाइम, जो हमें हर जगह मार्गदर्शन देती है और पूरे समय हमें सुरक्षा प्रदान करती है। ओवरऑल the main purpose of this poem is to describe you how we improve our listening power. So I think you have understand the whole chapter and it is in the form of prayer. Now we have to complete its question answer. So I will send you the next video after some time. Thank you.